بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي أو كما قال الصلاة والتسليم۔ محترم حاضرین، علماء کی فہرست اور ان کی تقریر سن کے لگتا ہے کہ بہت سے پیٹ بھر چکے ہیں، اس لیے جو مجمع تھا وہ یہ اشارہ نہیں کرتا کہ جلسہ آخر میں ہے۔ کرسیاں خالی دکھ رہی ہیں، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے کھایا ہو وہ دوبارہ کھانے کے چکر میں چلے گئے ہوں، زیادہ خالی ہو گیا ہو۔ مزید قیمتی باتیں آ چکی ہیں، ہر شخص نے اپنی شمع روشن کی ہے اور اپنی روشنی سے آپ حضرات کو راستہ دکھایا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ روشنیاں کہیں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ میری اور آپ کی آنکھیں چکا چوند ہوں کہ سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے۔ اب میں اپنے لیے کون سا انتخاب کر رہا تھا جب صبح سے سن رہا ہوں۔ کبھی میں نے سوچا کہ میں یہ بات کہوں گا اگر وقت ملا، تو پھر دیکھا کہ کوئی آیا اس کو اچک لے گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ تو ہو چکا ہے، کسی دوسرے حصے کو تلاش کرتا ہوں جس کی قوم کو یا مجھے خود کو ضرورت ہے۔ پھر دیکھا کہ کوئی اٹھا، وہ اور عمدہ طریقے سے اس پہ گفتگو کر گیا۔ اب اس تمام کا جو لب لباب نظر آیا مجھے تمام تقریروں کا، یہ لب لباب آیا ہے نظر کہ جو ذہنوں پہ اس وقت کم مائلی کم ہمتی اور ایک انجانے خوف کا جو خوف سوار ہے، وہی ہر ایک مقرر کی تقریر سے جھلک رہا ہے اور وہی اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے۔ میں بھی اسی میں حصہ گھساؤں یا کیا کروں، یا پھر اپنے کسی پرانے موضوع کو لے آؤں۔ ہزار دفعہ تقریریں ہوئی ہیں آپ کے علاقوں میں جا جا کر، مسجدوں میں جا جا کر۔ علم لامحدود ہے، لیکن جو انسان ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کے سامنے آئے وہ آ چکی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ سبق سنا دیا جائے اپنے پیر و مرشد اور اکابر کے سامنے کہ ہم کس سوچ کو لے کر چل رہے ہیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کبھی خیال کرتے ہوئے یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، یہ بات بھی ہو چکی ہے، لیکن انما کا مطلب یہ ہے کہ صرف تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ یہ کردار کہاں سے آئیں گے؟ یہ کردار وہاں سے آئیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سیکھ لیا تھا، بہت کچھ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا تھا۔ فارسی میں مہارت تھی، عربی میں مہارت تھی، اردو میں مہارت تھی، کلام بڑا اچھا کہتے تھے، کئی معنی اس سے نکلتے تھے، اور لیکن یہ خیال ہوتا تھا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں بیوقوف ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ اس سے بڑے درجے کے بیوقوف ہیں، جو علماء ہیں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں جو ان بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں۔ کہا یہ وہ دور تھا جب میں اپنے انا میں تھا، میں اپنے غرور میں تھا، میں اپنے علم کی ترقی اور کبر میں تھا، اور میں جس کو کمزور دیکھتا تھا تو اعتراض کرتا تھا۔ کبھی کسی عالم کو چھیڑ دیا اعتراض کرنے کے لیے، کبھی کسی میاں جی کو چھیڑ دیا اعتراض کرنے کے لیے، بہت سو کو مایوس کیا کہ تو نے اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں بھیج دیا، کیوں تو نے ان اخلاق کی طرف پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں لیکن ایک قصہ میری زندگی میں ایسا بھی ہے کہ جب میں جا رہا تھا ایک راستے کے سفر پر، افغانستان کے سفر پر جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں گیا
झोपड़ियां थी, झोपड़ियों के मकानात थे। वहां जब पहुंचा तो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, देखा एक कोने में एक मुल्ला जी मियाजी कुछ चंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या वही जुनून सवार था, ये क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। नमाज पढ़ के उसके करीब लग के कहा, हजरत जी कितनी तनख्वाह है आपकी? वो हजरत जी कड़वा जलाली था, मियाजी तो था लेकिन जलाली था। कहने लगा तू कौन है? उससे मैंने कुछ शिकायत की है कि मेरी तनख्वाह कितनी है कितनी नहीं। क्यों पूछता है, तुझे क्या मतलब है मुझसे मेरी तनख्वाह से? कहा वैसे पूछता हूँ, मेरा दिल किया कि पता चले कितनी तनख्वाह मिल रही है। कहने लगे मुझे 1 रुपया मिलता है महाना। आगे से कहने लगे, मैंने कह दिया क्या 1 रुपये में काम चल जाता है? कहा वो मियाजी फौरन से बोला, तू कौन आदमी है इतना बड़ा खैर का? कहा कि तू बेवकूफ है, मैंने तुझसे अपने बारे में कुछ शिकायत नहीं की, तू क्यों पूछता है कि काम चलता है नहीं चलता? काम चल रहा है जब ही तो बैठा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ, भूखा नहीं हूँ। हर काम तो ये लोग कर ही देते हैं, मेरा तो 1 रुपया बच जाता है। फिर कहने लगे अगर कहीं ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ 100 रुपये महाना मिल जाए। कहने लगे तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, आगे बढ़ा जा रहा है कौन तू? तो फिर उन्होंने अपना ताल्लुक कराया तो जानती थी दुनिया। कहने लगे मैं ये सोचता था आज तक, ये मियाँ जी कहने लगे इकबाल शायर है, बहुत अक्लमंद आदमी है, लेकिन आज पता चला कि तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, तू पढ़ लिख कर बेवकूफ हो गया। कहने लगे कि मैं इसको बेवकूफ समझ रहा हूँ, ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। बेवकूफ 1 रुपये में यहाँ पड़ा हुआ। कहने लगे मैं बेवकूफ किस मामले में हूँ? कहने लगे इकबाल याद रख, मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, अगर तुझ जैसी सोच मेरे दिलो दिमाग में आ जाती तो इन गरीब बच्चों को 1 रुपये में पढ़ाने वाला कोई दुनिया में ना मिलता। मैं 100 रुपये हासिल करके अपना पेट भर लूंगा, अपने बच्चों का, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ कर लूंगा। लेकिन ये कौन का मुस्तकबिल है ऐसी बस्ती जिसके पास पैसे नहीं है? कौन इनको दीन सिखाने आएगा? मैं पैसे के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अल्लाह का कलाम इनके सीनों में उतारने के लिए, वो अमानत जो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से उतरी थी, उसको अमानत कहा गया। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति, वही अमानत है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दी, ताबीन को दी, तबे ताबीन को दी। ये अमानत घर में रखने के लिए नहीं थी। फरमाया इकबाल अगर तू जैसी सोच हो जाती तो फिर इन बच्चों को कोई कुरान की तालीम ना पढ़ा पाता। अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे दिलो दिमाग में ये बात आई, ये सोच स्कूल और यूनिवर्सिटियों में नहीं मिली, ये सोच किसी खानकाहों में मिली है, और खानकाहों के अलावा ये सोच नहीं मिल सकती। याद रखो इल्म कभी काफी नहीं बन सकता। मैं जान जाऊं कि ब्रेक ये है, ये हैंडल है, मैं जान जाऊं यहाँ से रुकती है गाड़ी, यहाँ से चलती है, कभी गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो। और प्रैक्टिस होगी खानकाहों में। हमें अच्छे आदमी को तलाश करना होगा, नियतों को साफ करना होगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो नजर सामने थी बुजुर्गाने दीन के करीब लग के वो नजर वापस अपनी तरफ लौट आई, और जब मुझसे एहसास दिलाया गया कि ए इकबाल जिस जुबान से अल्फाज अदा करता है ये तेरे बाप ने तुझे नहीं बना कर तेरी जुबान तेरे मुंह में नहीं लगाई थी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के पेट में बना दी। इकबाल तू स्कूल में आंख नहीं बना के आया था, इकबाल तो हाथ पैर स्कूल में नहीं बने थे, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बना दी जब कोई शऊर नहीं था। ये अल्लाह की अता करता है, इनके जरिए से इल्म हासिल करने को इतराता है, ये अल्लाह की मशीन है। अल्लाह ने किराया मांग लिया तो क्या कहेगा? तब इसीलिए फरमाया था कि आखिरी वक्त है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत अंजर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा उस्ताद मोहतरम सुना रहे थे कि आखिरी वक्त के अंदर चंद रुवाई पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल, और पढ़ते हुए कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे हैं, और मुतवज्जे होकर कहते हैं तू गनी अलहर तो आलम मन फकीर, ओ पाक परवरदिगार जिंदगी वाहियात में गुजरी, आखिर ये एहसास इस पर आ रहा है तू बेनियाज है, पूरी दुनिया इस्लाम पर आ जाए तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तेरे बनाने में कोई कमी नहीं आएगी, पूरी दुनिया कुफ्र पर आ जाए कुछ कमी नहीं होगी। मैं फकीर हूँ, मैं मोहताज हूँ, हाथ में आपका, पैर में आपका, नाक में आपका, कान में आपका, पूरा जिस्म आपका, इलाही अगर तू सांस रोक लेता मैं एक लम्हे के लिए दुनिया में बाकी न रहता। ये सब कुछ वो है जो फैजान रब है जो मुस्तकिल चल रहा है पावर हाउस से। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फैजान रोक लेता, इकबाल आगे न बढ़ता, तो फरमाते हैं रोज़े महशर उज़्र हारा मुनवज़ीर, परवरदिगार क़यामत के दिन मेरा एक उज़्र कबूल कर लेना, बिला हिसाब व किताब जन्नत में पहुंचा देना, हिसाब का रजिस्टर न खोल लेना परवरदिगार, वरना मेरी बख्शिश न हो पाएगी। फिर खुद ख्याल आता है कि एक बार बहुत खताएं की हैं, न जाने कितने बच्चों को कुरान से रोका है, न जाने कितने को पढ़ते पढ़ते वापस रोका है,
जाने कितने गुनाहों में रुकावटें पैदा की हैं। फरमाते हैं फिर ख्याल आए पास ये तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं, हिसाब नहीं है। तू आड़े आया था कुरान की तालीम में, तू दुनिया की तालीम का मद्दे मुकाबिल न खड़ा हुआ था, बहुत खताएं कर रखी हैं। तो फिर कहते इलाही तू तो तेरा बंदा ही, तू तो तेरा बंदा ही। इतनी बात तो मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ, और बदीनी हिसाब ना गुज़ीर, अगर मेरा हिसाब यकीनी ना गुज़ीर आपने कर लिया, फैसला कर लिया कल, इलाही आपको कोई रोक नहीं सकता, ना आपसे कोई बच सकता, ना आपके से कोई चीज पहुंचीदा है, नमक भी है। मेरा सिर्फ इतना आपसे अर्ज है और इतनी बड़ी दरखास्त है, अब निगाहे मुस्तफा बिनहा वजीर पाक परवरदिगार, जब उम्मत का इम्तिहान हो रहा होगा तो उम्मत का नबी वहीं पर खड़ा होगा, और मेरा इम्तिहान होगा तो दो जहां का सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह खड़े हुए होंगे, क्योंकि उम्मत का इम्तिहान हो रहा होगा। ऐ अल्लाह मेरा अब रजिस्टर खोलेंगे इम्तिहान के लिए, इलाही इतनी तो बात मेरी मान ही लेना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से बचाकर मेरा हिसाब ले लेना। अल्लाह के रसूल पर क्या गुजरेगी, ये मेरा उम्मती जिसके लिए मैंने पेट पर पत्थर बांधे, ये मेरा उम्मती जिसके लिए मैंने खत छोड़ दिया, ये मेरा उम्मती रात को उठ करके मैं रोते रोते मेरी हिचकियां बन गई, मैं यार अपनी उम्मती करते करते अपनी दुआ को क़यामत के लिए रख दिया। इस उम्मत इतना रजिस्टर लेकर मेरे सामने पेश हो रहा है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह आपसे तो नहीं बच सकता। अल्लामा इकबाल मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ये कैफियत पहुंची, क्या आखिर में ये जुमले कहे, कहा था इलियास ओ इकबाल तेरे जुमले ही काफी थे तेरी बख्शिश के लिए, अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब फरमाए। चाहता हूँ ये भी आपसे कहने के लिए, आज इस दौर में काम लो खुदा के वास्ते, किसी अहलुल्लाह के सामने आ जाओ और दिल से ऐसा बना लो कि अपनी अना तोड़ सकता हूँ मैं उसकी ख्वाहिश के सामने। अगर मेरा पीर ये कह दे कि तेरा इसमें 1 लाख का नुकसान है, मैं कह रहा हूँ तू पीछे हट जा, अगर मेरा दिल गवाही देता है कि मैं हट सकता हूँ, तो पीर पीर है, वरना पीर के सामने रह कर कभी हमें से फायदा हासिल होने वाला नहीं। जब तक हम इतनी अपने आप के अंदर ये पैदा कर ले कि हमारा कोई पीर ऐसा हो जो हमें हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक भी बना सकता हो, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया सही चलेगी और हम और आप के अखलाक व आदाब के एतबार से सही होंगे। जब अखलाक सही होंगे तो राजा ताहिर के मुकाबले में मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह जब सामने आए थे, 1.5 लाख की फौज हो गई थी, अखलाक पर 50,000 से मुसलमान थे, गैर मुस्लिम हो गए थे। लोगों ने बहुत समझाया कि इसका साथ छोड़ दो, कहा ऐसे अखलाक आदाब का देवता हमने कभी नहीं देखा, वो अखलाक से सुधरे थे, जिसका तज़किरा हमें पीर मुर्शिद ने भी कहा था कि मुंबई में सिर्फ 4-6 मुसलमान आए थे, सिर्फ अखलाक देखकर, किरदार देखकर सब ने उनको जगह दे दी। आज ये किरदार खत्म हो गया, ये अखलाक खत्म हो गए। आज हमने पीर बनाया इसलिए ताकि मेरी सिफारिश कर दे, मेरे नशे का कारोबार है इसलिए बनाया है, जो उसकी पहुंच काफी है, इसलिए दुआ करता हूँ कि कारोबार हो जाए। कारोबार मेरा पीछे गलत है, इन गलत कामों में इस्तेमाल करोगे तो फिर ऐसी ही वाहियात आएंगी। घबराने वाला मुसलमान नहीं होता, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम को भी हमारी